Sir, first question from the student of B Farm third year, Abhishek Nagar. Sir, he is asking, what is the scope of growth in the production and quality assurance department for a fresher in the pharmaceutical industry? Mr. Abhishek, very nice question. See, career is career. आपका जहां इंटरेस्ट हो उसमें जाना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग में भी स्कोप की कमी नहीं है और क्वालिटी कंट्रोल में भी स्कोप की कमी नहीं है. और तो इसकी चिंता ना करें. आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं, आपको दवाइयाँ बनानी है, दवाइयाँ बनाना ही क्वालिटी कंट्रोल भी उसका एक इनहेरेंट पार्ट है. उसके बगैर क्वालिटी कंट्रोल के मेडिसिन बनाना कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रिलेटेड टू अवर प्रोफेशन, है ना. जहां आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपको अपने आप से काम करना अच्छा लगता है तो क्वालिटी कंट्रोल में जाइए. अगर आप वर्कर्स से, लोगों से काम करवाने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तो आपको प्रोडक्शन में जाना चाहिए. बिकॉज प्रोडक्शन में आपको 100, 200, 500 लोगों से काम करवाना है और क्वालिटी कंट्रोल में आपको खुद करना है. ठीक है अभिषेक? Definitely, sir. Very right, sir. Sir, another question from the student, B Farm final year, Kanchan. How do any pharmaceutical industry manage their chemical waste? As nowadays, that becomes a matter of great concern. Very correct. This is a very important aspect because pollution is the problem of pollution is growing everywhere. So waste of chemical. एक होता bio chemicals also. Microbiology में we have to take care of biological waste and in otherwise. So we have a ETP, effluent treatment plant. So all the liquid whatever coming out is treated first, and to that level it can be drinking water. Then only we dispose it off in the drains. So there is a specified procedure, SOP is standard operating procedure, how to destroy the chemicals and biochemicals also. Right, Right? sir. Thank you, sir. Sir, Samiksha wants to ask you that what are the qualifications and initials to get into the pharma marketing business? Wow. Marketing is something very different, and these technical things are very different. Manufacturing का mindset is a different, है ना. और marketing में is if you have flair to meet people और अपने को express करना, अपने product के बारे में बताना, अपने आप को express करना, है ना, वो सब marketing का काम है. उसके लिए आपका inherent जो स्वभाव है ना, वो that is going to help you, है ना. तो Sir, मैन्युफैक्चरिंग में right, सारा sir. टेक्नोलॉजी चाहिए और मार्केटिंग में सारा अच्छे से एक्सप्रेशन चाहिए. आप अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो. और दोनों ही चीजें हैं. बनाना काहे के लिए है? दवाइयाँ बनाना है तो बेचने के लिए बनाना है ना, फॉर मार्केटिंग. सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, another question. What is the right way to approach a pharmaceutical industry to get good internship? How we can approach means pharmaceutical industries? गुड इंटर्नशिप. Right, sir. वेरी गुड. सी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा एनकरेज नहीं करती, बट इंडस्ट्री लाइक अस फार्मासिन हम लोग बहुत एनकरेज करते हैं बच्चों को तरह तरह से. तो बट देयर आर सम लिमिटेशंस. सी वी हैव अ फैक्ट्री, वी हैव अ कैपेसिटी. सो स्टूडेंट्स भी कितने रख सकते हैं उसकी भी एक कैपेसिटी होती है ना. बहुत सारे लोग भी नहीं रख सकते, 2-3 बच्चों को एक एट अ टाइम रख पाते हैं. तो उसका सही तरीका तो यही है कि अपने कॉलेज के थ्रू रिकमेंडेशन लेटर भिजवाएं. Correct, sir. और Right. आई थिंक दैट इज द बेटर वे. आप खुद के अगर किसी को पहचानते हैं, कोई आपका रेफरेंस है, तो आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अपने कॉलेज के थ्रू जाना चाहिए. Okay, sir. Thank you. Sir, another student, Ankit Kumar, he wants to start his own pharmaceutical company. Then how he want to know how he can start to get their own company. Please give some reference. Soumya, Yes, Soumya, sir. some students are putting their questions here also. भी ले लेना थोड़ा सा. Right, sir. Right, sir. I'm taking ठीक. one by one. वाह अंकित, मजा आ गया.
हाँ तुम्हारा क्वेश्चन सुन के मजा आ गया, वेरी गुड। इसके लिए क्या करना है, बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं। पहले अपना करियर शुरू करो, एक जगह अपना माइंडसेट सेट करो, और इस बीच में अपनी तैयारी करो। ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आप मैडम से मेरा नंबर ले लेना, जब आप बिजनेस में आना चाहोगे तो हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको शायद आज भी प्लेटफॉर्म पे ले पाना कठिन है। पहले आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले आपको एक कंपनी अपनी रजिस्टर करानी होगी। इट मे बी प्रोप्राइटरशिप, आप अकेले भी कर सकते हैं। इट मे बी पार्टनरशिप, 2-3 लोग फ्रेंड्स मिलके कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको और आगे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा के एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और लिमिटेड कंपनी की तरह इसको रजिस्ट्रेशन करा के काम कर सकते हैं। तो पहले आपको अपनी कंपनी बनानी होगी, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है। कंपनी बनाने के लिए मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आपको मार्केटिंग भी समझना होगा। अगर आप अपना करियर मार्केटिंग से शुरू करेंगे तो भी अच्छी बात होगी, बिकॉज बिजनेस इज, सेल्स इज बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग काय के लिए कर रहे हैं? सेल करने के लिए ना। तो आप जो कुछ बेच सकते हो वो सारी चीजें बनाने की बात है। तो मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके साथ कोई आपका एक कोलीग जैसा भी हो सकता है कि एक फ्रेंड है जो मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, एक फ्रेंड है जो मार्केटिंग देख रहा है, एक फाइनेंस देख रहा है। ऐसे भी एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर इसकी डिटेल में कुछ चाहिए होगा तो मैं पर्सनली आपको हर तरह से गाइड कर दूंगा। ओके Thank you, अंकित, sir. ऐसा बच्चे जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मेरी हमेशा ये इच्छा होती है कि सब लोग एंटरप्रेन्योर बने। नौकरी क्यों करें, सब अपना अपना व्यापार करें, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बिजनेस इज बिजनेस। Thank you, sir, for your great motivation. Sir, Ayushi Goyal wants to ask, for freshers, which department is good for work in pharma company? हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले भी दिया है। जहां आपका फ्लेयर है, जहां Right, आपका sir. इंटरेस्ट है, Right, आपके right. इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत बहुत बड़ा वैरायटी है। आप एचआर में भी जा सकते हो लोगों के लिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकते हो, मार्केटिंग में भी जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, रेगुलेटरी में भी जा सकते हो। दिस इज ऑल। आपको पहले एक बार सारा व्यू लेना चाहिए, फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको शूट करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। स्कोप इज एवरीवेयर, स्कोप इज एवरीवेयर। Yes, sir. ठीक है ना आयुषी? Definitely. Sir, Vikas Kumar wants to ask from you, sir. Sir, is the funds are given to any pharma company by government to work for needy people? Pardon, please. I could not understand. Sir, he is asking any funds for opening or for starting their pharma company is provided by the government for the needy people? I think government is nothing to do with this. केवल वो फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। आप बैंक से, गवर्नमेंट से फाइनेंसिस ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, next question is from Lucky. Sir, can you please answer the department we have to opt at first, means at as a beginner, initial stage, so that we can get the best growth in future? Same, the choice. सेम चॉइस है। Same. अदरवाइज हाँ, क्यूए आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Right, sir. क्यूए वाले बंदे को ना पूरी फैक्ट्री के सारी चीजों को, मैन्युफैक्चरिंग भी, क्वालिटी कंट्रोल भी, रेगुलेटरी भी, सारी चीजों को देखना पड़ता है। अगर आपको कोई ऐसा का है तो फिर वो इसमें क्यूए में भी जा सकते हैं। Right, sir. Sir, actually, sir, most of the students are from UG, B Pharmacy. So they want the scope in research after completing their B Pharmacy course. So one Satyam Kumar is asking, can I join research and development department just after completing my B Pharmacy? R&D सत्यम, department. ये तो आपके आपकी फैकल्टीज, आपके टीचर, आपके लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एजुकेशन में आगे जाइए, एमफॉर्म करिए, पीएचडी करिए, है ना। और बहुत सारे रिसर्च, अब तो सारा सारा फार्मा इंडस्ट्री ही रिसर्च बेस्ड है। हर छोटा छोटा काम के पीछे इतना काम करना पड़ता है, लाइक मेकिंग अ थीसिस, है ना। अब जैसे मैंने केवल बीफॉर्म किया है और बिजनेस में आए हैं, और इतने सारे डॉक्यूमेंट, मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो मोर देन 100 थीसिस के बराबर काम कर चुके हैं। बट थीसिस अगर आप प्रॉपरली एमफॉर्म पीएचडी करके उसी काम को करेंगे और प्रॉपर अपने किसी गाइड के साथ मिलके करेंगे तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। Yes, sir. Sir, Jay Kumar wants to ask, what are the problems you faced in running the pharma company at beginning, basically, at early stage of your life?
सी ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सामान्यतः लोग परेशान होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बट यू हैव टू एंजॉय द थिंग्स। सारी परेशानियों में भी आपको रास्ता निकालना ही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। कुछ नहीं होता हमारे पास। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने फार्मेसी की पढ़ाई करी, बट हमको अकाउंट्स भी देखना पड़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जब बैलेंस शीट बनाता है तो वो भी मेरे से पूछता है, सर मैं क्या करूं, है ना। मार्केटिंग वाला भी पूछता है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो भी पूछता है। जो इन सब चीजों के लिए हमारे पास जवाब कहाँ से आए कि मैं तो बाय क्वालिफिकेशन केवल फार्मेसी ग्रेजुएट हूं ना, बट बाय एटीट्यूड मैं सब कुछ हूँ। चपरासी से लेके रिसर्चर तक, एवरीथिंग एन एंटरप्रेन्योर हैज टू हैव। और वो तभी आता है जब आप इंजॉय करोगे काम को, है ना। Yes, sir. Sir, Nitesh asking, how you reused expired medicines? Reuse? No, Yes, not at all, never. not at all. We cannot reuse medicines. Raw material we can retest. API we can retest Retest, right, sir. and increase its expiry date. But finished products, pharmaceuticals, tablet, capsule, syrups, इनमें कोई scope नहीं है. That has to be destroyed as per pollution norms. Right, sir. Definitely. It's very utmost हाँ, urgent requirement. बहुत सारा लोगों को गलतफहमी है कि साहब उसका लेबल बदल देते हैं. It is not possible. Right, sir. Right. And neither ethical. Ethical भी नहीं है, और बिल्कुल. अब करना संभव भी नहीं है और ना करना चाहिए. Definitely, sir. Sir, Abhijit Prasad wants, when you are coming, sir, to hire us from NIT. एक बार आया था आपके यहाँ पे, एक दो स्टूडेंट मेरे पास रहे हैं. You might be Yes, knowing sir. that. अर्जुन तुमको याद है? आपके यहाँ से हमारे आपके स्टूडेंट थे मेरे पास. Training में आए होंगे, sir. Right, sir. Anyway, Thank you. Sir, Anuj wants to ask, if we keep a special expression in our future making, then we can open our company in which is just marketing. oh yes. Means, अनुज, आप मार्केटिंग केवल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है. आप किसी से भी जिसके पास फैक्ट्री है उससे माल बनवा सकते हैं, है ना. दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी अरेंजमेंट. आपके ब्रांड होंगे, आपके फॉर्मुलेशंस होंगे, आप जो बेचते रहते हो वो जिससे भी चाहे उससे बनवा सकते हैं. हम भी बनाते हैं. हम अपना माल, अपना टीम भी है हमारे पास मार्केटिंग की, और जो स्पेयर कैपेसिटी है उसमें हम और कई 25-30 कंपनियों का माल बनाते भी हैं, उनके ब्रांड्स बनाते हैं. राइट. yes, सो sir. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ये भी कर सकते हो, केवल मैन्युफैक्चरिंग कर करके दूसरों को दे दो, अपना मार्केटिंग नहीं है कोई बात नहीं. या अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो, आजकल ना हर चीज स्पेशलाइज्ड हो गई है, बहुत स्पेशलाइजेशन हो गया. जैसे पहले ना एमबीबीएस डॉक्टर होता था, फिर उसके बाद आई स्पेशलिस्ट भी हो गया, फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हो गया, फिर लाइक दैट. तो अभी बिजनेस भी बहुत स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है. आप केवल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप केवल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप केवल R&D कर सकते हैं. आजकल सीआरओ कंपनी भी बहुत है, रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑल. आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना लाइन, अपना करियर डिसाइड करना पड़ेगा. Yes, sir. Sir, another question from Mohammad Nafiz. Nowadays, sir, there is so many competition in medicine regarding their prices. So how these work? How these drugs are available? Means the same drugs are available at different prices. They want to ask from you. See, this is again marketing strategies. Of course, there is price control. बच्चों ने सुना होगा DPCO, Drug Price Control Order, and National Pharmaceutical Pricing Authority. There are certain medicines जिनका प्राइस वो डिसाइड करते हैं. अदरवाइज आप अपने प्राइस खुद रख सकते हैं, और आपके अपने स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है. प्रोडक्ट कॉस्ट तो वही रहेगी, आपकी स्टाइल ऑफ मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्राइस उस पर क्या लगनी है. और भैया देखो, कंपटीशन है नाफिस भाई, कंपटीशन है. इसी वो कंपटीशन वही होता है जहां पे काम होता है, पोटेंशियल्स होते हैं. फार्मा में पोटेंशियल है, खूब पोटेंशियल है. इट्स लाइक एन ओशियन. आप कितना बिजनेस ले सकते हो, ले लो, आपकी कैपेसिटी है ना. इसलिए कंपटीशन भी होता है. जहां 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 पोटेंशियल होता है वहां कंपटीशन होता है. Competition hai. Yes, sir. Sir, next question. What are the major skills required in DRA for DRA candidate? Major skills for DRA candidate. DRA बोला तो Drug research, drug regulatory authorities. ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने के लिए तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो B.Pharm है.
Yes, is good sir. enough. B Form, you don't need to be an M Form or PhD or something. Basic Right. qualification is B Form for regulatory, right? Plus some experience is also required. I think it is 18 months experience is required before then only you can apply for drug inspector or quality analysis like that. Okay. Sir, next question. Thank you, sir. Chinmay Sahu. Sir, what you suggest as a fresher to work in R&D department, or we have to enter in any other department to gain experience first? Maybe R&D or any other department in pharma company. सी चिन्मय मैं बताऊं आपको हर चीज बहुत स्पेशलाइज्ड है आपको कहाँ जाना है उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या एक्सपीरियंस लेना है कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट तो है कुछ और चल देते हैं किसी दूसरी तरफ ये नहीं होना चाहिए है ना आप पहले अपना तय करो कि आपको क्या करना है R&D में जाना है मैन्युफैक्चरिंग में जाना है क्वालिटी कंट्रोल में जाना है फिर उसी टाइप की सर्विस ढूंढना चाहिए उसी टाइप की कोशिश करके एंट्रेंस भी करना चाहिए है ना Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, Wasim Khan asking. Just a minute, sir. After completing B pharmacy, if I want to go for drug inspector, which way I have to choose and what type of preparation I have to follow, sir? नहीं द सिंपल आंसर पहले भी दे चुके हैं केवल For बी drug. फॉर्म करना है आपको अच्छे नंबर से बी फॉर्म करें और किसी कंपनी में एनालिसिस में या मैन्युफैक्चरिंग में जाके सर्विस करें 1.5 ईयर 18 मंथ मिनिमम इज रिक्वायर्ड उसके बाद तब तक करते रहिए जब कोई वैकेंसी निकले आप उसको अप्लाई करिए और कोशिश करें तब तक में सर्विस करना लाइन में रहना जरूरी है Yes, sir. राइट और अगर Sir, एम फॉर्म कर लेंगे तो आगे जाके आपको और एडवांटेज मिलते हैं आपको फायदा प्रमोशंस होगा। मिल सकते हैं तो एजुकेशन इज ऑलवेज बेटर अगर कोई जल्दी नहीं है आपको अपने घर फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है तो एम फॉर्म भी करिए कम से कम तब ज्यादा अच्छी बात होगी ठीक है वसीम Yes, sir. Sir, Lucky is asking, pharmacy department is blooming more and more nowadays, and so many number of pharmacy graduates are also increasing. How can we keep us motivated and seek growth? दिस इज मोर और लेस मैनेजमेंट क्वेश्चन Right, sir. And one is asking again, sir, Ayush asking, कभी what is the scope कभी of teaching? Right, sir. Not suited for. इसके Mm, पैंडेमिक के बाद जब फिजिकली मिलने का मौका मिलेगा ना तब मैं इस बात के लिए और मोटिवेट करूंगा कैसे कैसे क्या करना है बिकॉज दैट इज नॉट टेक्निकल पार्ट दैट इज अ right, sir. मोटिवेशनल पार्ट एटीट्यूड दैट रिक्वायर्स एटीट्यूड Sir, one last question from Himanshu Sharma. Sir, nowadays so many different pharmaceutical industries are running. So, in what makes your company unique than other companies? वाह हिमांशु मजा आ गया भाई आपके क्वेश्चन में डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 pharmaceutical companies in our country I think the largest company in the world so that's why it is called pharmacy of the world India is the pharmacy of the world अपने को अलग करना सी एवरी पर्सन इज यूनिक इन इटसेल्फ भगवान ने कोई दो एक से नहीं बनाए ना हर कोई अलग अलग है वैसे ही कंपनी बिजनेस भी हमारे अपने एटीट्यूड के हिसाब से हमारी अपनी सोच के हिसाब से कंपनी डिफरेंट होती है मशीनें तो वही है ना मशीनें तो घूम फिर के वही सेम रहने वाली है किसी के पास कैपेसिटी के डिफरेंस होगा बट मशीन को चलाने के पीछे जो भावना है द इंटेंशन बिहाइंड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर कुछ लोग हैं जो केवल बिजनेस करने के माइंडसेट से काम करते हैं कुछ लोग हैं बिजनेस करते हैं सेवा भाव से जैसे मैं बोलता हूँ ना औषधि निर्माण केवल व्यापार ही नहीं मानव सेवा भी है ये भावना की बात है कौन उसको किस तरह से ले रहा है दैट मेक्स अस डिफरेंट अभी आपने देखा होगा वीडियो के लास्ट में हमको कितने तरह तरह के अवार्ड्स मिले हैं है ना Yes, sir. Yes, sir. ये केवल इसी वजह से कि उसके पीछे आपकी इंटेंशंस क्या है आपकी भावना क्या है उसके हिसाब से आपको रिकॉग्निशन मिलती है कितने सारे अवार्ड्स और हम कितने सारी सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग प्रॉफिट कर रहे हैं तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे ना समाज का तो सोशल एक्टिविटीज भी हम बहुत सारी कर रहे हैं वो हमको अलग करती है और दूसरी कंपनी से और दूसरे बिजनेस हाउसेस से
सो Yes, वो sir. आपका करेक्टर है, जिस तरह के आप होगे उस तरह का आप की कंपनी की यूनिकनेस बनती है. So we must be unique, and I told you, you are unique. Himanshu, you are unique. Everybody is unique in Everyone is himself. unique. है Yes, ना? sir. किसी भी दो का डीएनए एक सा नहीं है ना? सबका डीएनए भगवान ने अलग बनाया है, उसी से हम अपने आप को अलग अलग अपना व्यापार करते हैं. थैंक यू. Sir, Anything? yes, sir. Actually, students are very curious. They two good questions, sir. I came to know. One No is problem. Isha is asking, sir, if we start a manufacturing company, can we get franchisee from a reputed company for the manufacturing purpose? Yes, this is happening. 30-40 साल पहले क्या होता था, वो खुद बनाता था, हम खुद बनाते थे, खुद बेचते थे. अब स्पेशलाइजेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले स्पेशलिस्ट अलग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बेचने वाले अलग हैं, उसका माइंडसेट भी अलग है, वो अलग अपना मार्केटिंग करते हैं. तो आप अगर अपनी बढ़िया से यूनिट लगाएंगे, तो आपको आप जिस लेवल की यूनिट लगाएंगे उस तरह के कस्टमर आपको मिलेंगे. Okay, sir. कस्टमर भी बहुत है, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, हर लेवल के कस्टमर है ना? तो आप जिस तरह का अपना यूनिट लगाओगे उस तरह के आपको कस्टमर मिलेंगे जिनके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हो. Yes, गुड sir. आइडिया. Sir, Kirandeep asking, if we compare our Indian pharma with that of US pharma, then there is a very big difference between them. So how we growth our Indian pharma companies as compared to any other country? What are the major steps that we learn from other countries also? किरणदीप, पहले तो आप ये समझ लें, यूएस इज नोन के सबसे बढ़िया सबसे काम होता है. यूएस एफडीए के अप्रूवल्स यूएस के अलावा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है. ध्यान कर लो आप, किसी भी दूसरी कंट्री में इतने नहीं है जितने इंडिया के अंदर यूएस एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स हैं. राइट? तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत आगे हैं फार्मा में, और किसी फील्ड में आप मत सोचो. हम लोग फार्मा में, सो फॉर एज फार्मा इज कंसर्न, हम लोग दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे हैं. अगर आप यूएस को पहला बोलते हो तो इंडिया को दूसरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे इतने सारे यूनिट्स यूएस एफडीए अप्रूव्ड यूनिट केवल इंडिया में है और कहीं नहीं है. और हम लोग 200 कंट्रीज में इंडिया से दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं. दिस इज अ मैटर ऑफ प्राउड कि हम लोग इतने 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 एक्सेप्टेबल हैं इंडिया की दवाई, अपनी मैन्युफैक्चर्ड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के 200 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं. और अभी पेंडेमिक में तो देखा ही होगा, सारी दुनिया को हम लोगों ने वैक्सीन दिए. दैट इज आल्सो अ फार्मा कंपनी, है ना? सो किरणदीप, गुड, यू शुड प्राउड ऑन योरसेल्फ, proud on our Indian pharmaceutical industry. Yes, sir. जी मैम. Sir, Pratik is asking, after he's just asking from you, sir, doing masters from abroad is worth or not? I mean, from USA or other European countries, or we should continue our B pharmacy, M pharmacy from India. सी प्रतीक, मैं बताऊं आपको, आई टेल यू, अपने यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है. Right, sir. अपने यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है. वो दूर के ढोल चौहारने वाली कहावत सुनिए ना, दूर की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, दूर के है ना, तो वैसे ही है. Very true, sir. I agree with you. और ये इस क्वेश्चन का ज्यादा अच्छा आंसर अर्जुन जी दे सकते हैं. ही डिड एमबीए फ्रॉम लंदन, राइट? राइट सर, एक्चुअली यही सिनेरियो है. हमें ऐसा लगता है कि अच्छा वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट मिलेगा, बट वहाँ पे वहाँ के कल्चर के हिसाब से मिलेगा. एट द एंड अगर आपको यहाँ पे अपना करियर बनाना है, इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन इंडिया एंड इफ यू वांट टू वर्क इन इंडिया, then you should study in India only. That would be better than studying anywhere else, because you will get to know the culture of India, how Indian industry is working. You will get to know the Indian companies, you will get to know Indian students also. आपको काम स्टार्टिंग में आपको काम करना है, then you have to develop a leadership, and leadership develop करके आपको इंडियन से ही काम कराना है आगे चल के. So it is very important that you pursue your education also in India. I feel that would be like much better than pursuing it anywhere else. बिकॉज हम लोग यहाँ पे जिस कंपटीशन में रहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो कंपटीशन सिखाता है. व्हेन आई वाज इन यूके, हमारा एक सेट गोल बन गया था. ऑन डे 1 वी न्यू कि ओके किस दिन क्या क्या होने वाला है, एंड वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके ठीक है, क्लासेस विल स्टार्ट एट 10, इट विल एंड एट 4. So they used to start at 10 and they used to end at 4 only.
not even 4:30. And here in India, when you will start working, your class might start at 8, your class might end till 10, and this is what happens in reality also. In UK, really, people don't work after 4 o'clock, 5 o'clock, but in India, they do work. And when you will gain the leadership, you will have to also make people learn, and you have to make them passionate enough so that they are able to work till long hours in India. Because वो यहाँ की यहाँ requirement. पर मैं अर्जुन से थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, बट सी द थिंग इज यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी इन द लॉन्ग रन. मान लो अमेरिका में एंड कनाडा में द प्रोस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. नाउ सी इफ यू वांट टू सेटल अप इन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, इन बोथ दिस वेस्टर्न कंट्रीज, I would like to request that you should prepare yourself from day one, not that the final year में जाके मेरा अचानक याद हुआ और उसके बाद में तैयारी स्टार्ट किया, उसमें से कुछ होगा नहीं. And number two is that whenever you are selecting your universities in USA, you should go for the QS World Ranking, and accordingly you should select which universities are coming in the top 200 or 300 list, and accordingly you apply. See the prospect. See that what Arjun has very rightly pointed out is you have to decide where you want to go. See, if you want to settle in states, if you want to settle in UK, my suggestion is straight away proceed with a clear-cut focus on it. Now, if you want to settle up in India, then your way, your movement, your decisions, your pathways, your preparation, everything should be in the Indian context. Correct. Yes, sir, so true. Yes, sir. So any more question? Yes, sir. One or two last questions, if you permit, sir. No problem, no problem. Sir, Mohammed आज Faiz. हम बच्चों को खुश करने के लिए बैठे हैं. Thank you, sir. Thank you. So many questions are there in the chat box. जी. Sir, Mohammed Faiz is asking how you determine and set the price of medicines and your products. This is very commercial kind of question. See, the cost of product is same. आपको अपना प्राइस को कैसे बेचने का है, क्या सिस्टम रखने हैं, एथिकल मार्केटिंग है, जेनरिक टाइप से मार्केटिंग है, या आपको, तो उसके ऊपर आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या करना है. एंड मोर और लेस दिस इज ड्राइव्ड बाय द मार्केट. मार्केट में उस फॉर्मुलेशन की क्या प्राइसेस और कंपनीज की चल रही है, उसी के आसपास आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस रख सकते हैं ना. सो प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द market trends. Yes, sir. Sir, Saurabh Chaurasia is asking, during this COVID pandemic condition, we had faced a lot of uncertainties. However, the pharma industries somehow managed the productivity of drugs as well as medicines. But according to you, what another changes and improvement should be there for the upgradation of pharmaceutical industries, which could favor our nation? Saurabh, very good question. But it is all based on experience. हर इंडस्ट्री का अपना अपना अलग अलग है, वो कहाँ उसको इम्प्रूव करने की चीज है, और बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री वाले अपने आप में लगे हैं, इसलिए इम्प्रूव हो रही है. इसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन और ये सारी चीजें इतनी मायने नहीं रखती. हम लोग का इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया इज मच अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. वो भी केवल इसीलिए कि हर एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि मेरे को और अच्छा करना है और अच्छा करना है. इस कंपटीशन के चलते, इस मेंटल स्टेटस के चलते हम लोगों की इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है. तो उसकी सोचने की जरूरत नहीं है. जब आप आएंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी इंप्रूवमेंट सोचना पड़ता है. हर इंडस्ट्री की अपने फील्ड है जहां उसको इंप्रूवमेंट चाहिए. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, one same question is from 2-3 students. Repeatedly, they are asking. Sir, we will be very happy if you share your journey from a pharmacy graduate to the director of Pharmacin. अरे बाबा. They are requesting, sir, to please. All want to know, and they want to be encouraged. ये जरा बड़ी बात होगा. सी आई डिड, थोड़ा सा बोलेंगे वैसे, अदरवाइज जब कभी पर्सनली मिलने को मौका मिलेगा तब ज्यादा अच्छे से बात रखेंगे. इन 1976 आई डिड बीफॉर्म फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश, है ना. देयर आफ्टर आई वेंट टू मुंबई. दैट टाइम इट वाज बॉम्बे.
और उस समय सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हब बॉम्बे ही होता था, वहाँ गया। और कई सारे क्वेश्चन बच्चों ने पहले किए, उस बारे में बताऊं। मेरे को पहले से ही था कि मेरे को फार्मा इंडस्ट्री लगानी है, तो हमने नौकरी भी वैसे ही ढूंढने की कोशिश की। सर्विस तो बहुत मिल रही थी, मैं वहाँ 6 महीने तक मुंबई में अनएम्प्लॉयड रहा, लेकिन जो चाहिए वही चाहिए, तभी नौकरी ज्वाइन करेंगे जब हमको हमारे मतलब की चीज मिलेगी। वरना जल्दी जल्दी में क्या होता है, नौकरी के चक्कर में आप रास्ता बदल देते हो। जो मैंने पहले ही बताया, मैनेजमेंट की बात है, आप अपना करियर क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से अपनी इंटर्नशिप सोचिए, उसके हिसाब से अपनी नौकरी देखिए, राइट। तो 6 महीने अनएम्प्लॉयड रहने के बाद मेरे को सैंडोज में मल्टीनेशनल कंपनी में जाना था। ये मैंने सोचा था कि मैं अपना करियर मल्टीनेशनल कंपनी से शुरू करूंगा। तो जबकि उस समय हमको तमाम सारे और छोटे छोटे ऑफर मिल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया। परेशान रहा, ऐसा नहीं कि मैं घर से बहुत वेल ऑफ था उस समय के साथ, लेकिन परेशान रहा, बट रहा कि हमको केवल मल्टीनेशनल में जाना है। तो जब सेंडोज में मिला तो वहां से काम किया। और आप समझ सकते हैं, सेंडोज इज अ मल्टी स्विच कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी। वहां पे बहुत कुछ देखा, बड़े बड़े सपने देखने को मिले, लेकिन दोस्तों सीखने को नहीं मिला। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज में उस समय मेरे ख्याल में मोर देन 100 केमिस्ट वर देयर, फार्मेसी ग्रेजुएट्स वर देयर। तो एक छोटे से डिपार्टमेंट में उन्होंने आपको ला दिया, नौकरी करते रहो, यही काम, तनख्वाह अच्छी देते थे, लेकिन हमारा पर्पस तो कुछ और था। हमने पहले ही सोच रखा था कि मेरे को फार्मा इंडस्ट्री में जाना है। तो फिर मैंने 2 साल के बाद उस नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि यहाँ हम तनख्वाह तो पा रहे हैं अच्छी, बट यहाँ हमारा करियर से कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर हमने एक बहुत छोटी सी कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें केवल एक 2 मालिक थे, एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट था। मैंने एज एनालिटिकल केमिस्ट उसको ज्वाइन किया था, और केवल 20-25 वर्कर्स थे। इतनी छोटी सी कंपनी को ज्वाइन किया। एंड आई टेल यू फ्रेंड्स, सच्ची मायने में बिजनेस मेरे को वहाँ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ ने सारे काम किए, मैन्युफैक्चरिंग का भी किया, क्वालिटी कंट्रोल का भी किया, इवन रॉ मटेरियल परचेज का भी किया, बैंक का भी किया, बैंक से लोन लेना है, ड्रग इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवाना है। तो ये सारी चीजें बड़ा एक्सपीरियंस का बड़ा वहाँ मिला। फिर उसके बाद अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मल्टीनेशनल कंपनी को साहिबाबाद में, फ्रैंको इंडिया का एक प्लांट लग रहा था। फिर मैं दिल्ली आ गया था बॉम्बे छोड़ के, छोटी कंपनी ज्वाइन करने के चक्कर में। यहाँ पे फिर हमने फ्रैंको इंडिया का प्लांट लग रहा था, उसका जमीन खरीदने से लेके कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनें खरीदना और लाइसेंसेस लेना, ये सारे काम किए। और ये तभी होते हैं जब आप खुद बहुत पागल बन के काम करते हो। जब आप काम करते हो तो कोई भी कहता है, यार अरविंद जरा ये काम कर दे भाई, अरविंद जरा ये काम कर दे भाई। तो अकाउंट वाले काम भी हमने किए, लाइसेंसिंग वाले काम भी किए, क्वालिटी कंट्रोल वाले भी काम भी किए, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी काम किए, और ऐसे करके उस कंपनी को प्रोडक्शन में लाए। फिर उसके बाद अपना काम शुरू किया। तो फिर उतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, मल्टीनेशनल कंपनी को जमीन खरीदने से लेके लगाने तक का अनुभव था, छोटी कंपनी का भी अनुभव था। उसके पहले जब हम पढ़ते थे उस टाइम हमको पता ही नहीं था, ये चेक जो चेक बनाते ना, बैंक की चेक, वो हमारे खाते में जमा कराते हैं, पैसे आता कैसा है, वो प्रोसेस भी नहीं पता था। जब बिजनेस में आए, छोटी कंपनी में गए, तब हमको मालूम पड़ा ना। सेंडोज में तो पता ही नहीं था कि कहाँ बैंक है उनकी और कहाँ अकाउंट होते हैं। फिर जब अपना काम करने पे आए, तो उस समय तक हमने इतना अनुभव, 6-7 साल सर्विस करी। उस बीच में बहुत तरह तरह के सारे अनुभव किए, एक्सपीरियंस किए, और अपने आप को एक्सर्ट किया। 24 घंटे काम, जो अभी अर्जुन जी कह रहे थे ना कि लंदन में तो बस 4:30 बजे छुट्टी हो गई तो 4 बजे छुट्टी हो गई, उसके बाद 4:30 बजे कोई नहीं मिलेगा आपको। और हिंदुस्तान में हम लोगों को आदत है 24 घंटे काम करने की आदत है, वी आर यूज्ड टू। हम लोगों को इसमें कोई शर्म नहीं आती कि हम 24 घंटे काम करते हैं। इसलिए हम कंपटीशन में आ पा रहे हैं, इसीलिए हम दुनिया के सारे कंट्रीज को दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ ऐसा एटीट्यूड है, इतना पावरफुल एटीट्यूड है। तो अपने आप को मजबूत बनाना, अपने मन को मजबूत बनाना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस में आने की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी मनसा अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छा काम करने का मन लेके चलते हैं, है ना, शॉर्टकट्स में फंस गए ना तो गए काम से, फिर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते अगर आप शॉर्टकट्स में फंस गए तो हर जगह होता है, मेड इजी पढ़ के आप पास तो हो सकते हो। क्या मैडम, मेड इजी पढ़ के पास तो हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरिटोरियस होना है
तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। Yes, sir. वो Experience नहीं is पूरा also. सिलेबस पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मेरिटोरियस होना है तो फ्रेंड्स बिल्कुल पूरी तरह से जैसा अभी अभिजीत सर भी बोल रहे थे कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत है। अभी आपको लगता होगा यार ये पढ़ लेंगे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे माइंडसेट को तैयार करता है और हमें मेहनत करने की आदत को बनाए रखता है। एंटरप्रेन्योरशिप में इनिशियली क्या थ्रू आउट द लाइफ जब तक आप एंटरप्रेन्योर हैं बहुत मेहनत करना होती है। मेहनत के तरीके तो बदल सकते हैं। शुरू में हमको फिजिकल मेहनत बहुत करना पड़ती थी, भागदौड़ बहुत करनी पड़ती थी। आज हमें ब्रेनी मेहनत बहुत करनी पड़ती है कि किस से क्या बोलना है, किसको क्या लिखना है, किसको क्या प्लानिंग करनी है, हमें चीजें हैं। तो लेकिन मेहनत करने की आदत होनी चाहिए और अच्छे मन से मेरिटोरियस बहुत ऊपर जाना है ये सोच के सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल के ही आप ऊपर जा सकते हो। शॉर्टकट से आप पास तो हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे अच्छी इंडस्ट्री बनाना है, एक मेरिटोरियस बनना है, रिकॉग्निशन चाहिए, तो प्रधानमंत्री भी आपको रिकॉग्नाइज करें, अवार्ड दें। फार्मासिस्ट को नेशनल अवार्ड भी मिला है, वो केवल इसी वजह से कि हमने पूरी अच्छी मनसा से अच्छे मन से काम किया और 24 घंटे काम किया, एंजॉय किया काम को, परेशान नहीं हुए। लोग कहते हैं ना कि अरे यार बड़ी मेहनत करी, मेहनत नहीं करी, आई एम एंजॉयिंग द वर्क। जब आप एंजॉय करते हैं तो मेहनत तो नहीं होती ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ सब बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया सोचें और अच्छी अच्छी इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करें। बी योर ओन एंटरप्रेन्योर। Yes, sir. Determination and strong willpower is the utmost key to get success in जो whatever the चाहिए field. जो Yes, चाहिए sir. वही चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल गया उसमें संतुष्टि, है ना। Yes, sir. So Thank you, sir, for answering each and every questions. You answered very nicely and in detail. I hope the students will clear their doubts. Now I would like to invite Dr. Sanchita Das, ma'am, HOD Pharmacology, NIT Pharmacy Institute. Ma'am, please. Thank you, Soumya ma'am. I would like to thank Dr. Arvind Kumar Gupta, Director of Pharmacint Company, Dr. Arjun Gupta, who is CEO of and Senior Manager of Pharmacint Company. And really, from the core of my heart, I would like to extend my thanks on behalf of NIT Pharmacy Institute for arranging such a knowledgeous and useful industrial visit in a very short term, that is info I requested and our director sir has requested and you accepted our request and you arranged all these industrial visit for our students in very short notice, and I am really thankful to you, sir. And you in your total visit and after questioning and interaction to our students, and you highlighted how patriotic you are and how determined you are. This encouraged the whole students and even me also it encouraged. And next I would like to extend my thanks to Dr. Abhijit Majumdar sir and Dr. Rupa Majumdar ma'am, and the dean of our institute and director of our institute, who have already initiated this that is industrial visit, and who always encouraged us and always say us that without an industrial visit it cannot be a fruitful study. So I would like to thank you, sir, and thank you, ma'am. And I am also thankful to Dr. Soumya Das, ma'am, for conducting the industrial visit in a systemic manner. And I am also thankful to Mr. Vijit Devnath, who helped this industrial visit to be technically that is smooth and systematic. And finally, I would like to extend my thanks to my colleagues and all the students who are the main attraction of the whole industrial visit, for whom this has been organized. And thank you, sir. And I would like to say you that after this COVID pandemic, if we can, and obviously I know that Majumdar sir always think that Encouraging us. to our institute and organize the virtual, without virtual, that is offline, that is meeting with our students and motivate them, sir. Thank you, sir. On my own personal behalf as well as on the behalf of the entire NIT Pharmacy Institute family,
My extreme thanks to Dr. Arvind sir and Arjun sir for supporting my pool of students of more than 350 students who enthusiastically participated into today's program. I was astonished to see that the bunch of questions was not ending. It was an ever-ending process of asking questions, and you were answering all the questions, whether relevant or irrelevant, in a very sympathetic and patiently you were answering all the questions. In fact, thank you to Shomi and Sanjita for arranging this nice industrial visit. You have done in the past very well too, and this time also this arrangement was really, really fantastic. Thank you, Gupta sir and Arjun sir. I think we will meet again, and I expect that in dear future also we will be organizing such industrial visit so that our future students, our other stakeholders can also be benefited. Thank you, Dr. Sir. Thank you. Thank you, sir. sir. Thank Thank you, you thank very you. much. सभी लोगों का Thank you बहुत so बहुत much, sir. धन्यवाद. Thank you. And it is I love to be with you people. एकेडमिया के साथ मेरे को रहने में बहुत अच्छा लगता है, और खास Thank you, करके sir. अपने बच्चों के साथ जो हमारे एक बॉन्डिंग टाइप का डेवलप हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you, Thank sir. you. Bye. Thank you, sir. Have a nice day. Yeah. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir.